Hello and a warm welcome to The Pulse, Rajya Sabha TV's fortnightly show on major issues in public discourse. I'm Neelu Vyas. Through this 60 minutes wheel, we'll try to find answers to problems with the help of affected people, specialists and the authorities. In today's episode, we focus on an alarming increase in the number of young offenders in the country. Data released by the National Crime Records Bureau reveals a 10% increase in teenage crimes. Why are juvenile crimes on the rise despite a well-established legislative framework? How do we deal with a situation where a large number of young Indians are turning delinquent? Has it got something to do with the law, or does the society needs to go into soul-searching mode? Robert Baden, remember, has written, "Juvenile crime is not naturally born, but is largely due to either the spirit of adventure or lack of discipline." So here I am, seated amid young children whom we do not label as offenders but victims of the society. They are here to share their experiences and what actually led them down the wrong path. They will be free to ask questions to our eminent panelists. They include former IPS officer Amod Kant, founder NGO Prayas. He's played a pioneering role in articulating issues related to children. Next to him is Asha Devi, mother of Nirbhaya, victim of 2012 gang rape in Delhi, which since then has become the face of many movements across the country. Dharmen Singh Yadav, a young IPS officer who initiated the famous Operation Smile, which had global resonance. He created a template of sorts for the entire police force in the country with a sustained drive on missing children. And next to him is Dr. Nimesh Desai, a renowned psychiatrist from the Institute of Human Behavior and Allied Sciences. He deals with young offenders regularly and also acts as a bridge between the government and the police forces. And joining us on Skype soon will be Priyank Kanungo, member of the National Commission for Protection of Child Rights. I welcome all of you on the show. So let me begin this show by bringing you face to face with some very soul-searching stories with the people who actually underwent a carefully calibrated reformation process. आपका नाम क्या है और किन परिस्थितियों में आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके लिए कि मैं चाहती हूँ आज आप व्यूअर्स को बताइए कि किन परिस्थितियों में आपको ऐसे कदम उठाने पड़े थे। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं तकरीबन 14 साल का या 15 साल का होऊंगा उस समय, और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बस घूमने के लिए निकले थे और बीड़ी पी लिया करते थे उस समय, बीड़ी या सिगरेट वगैरह। तो घूमने के लिए निकले, ऐसे ही थोड़ा सा किसी बात पे झगड़ा हो गया किसी से, और ऐसे ही मजाक में समझो या बात बढ़ती चली गई और मतलब मर्डर हो गया था। और हम 3-4 लड़के थे उस समय और सोचा भी नहीं था कि मर्डर हो जाएगा, ना ही हमें पता था, ना ही कोई प्लानिंग थी, और हो गया। उसके बाद मैं जेल चला गया और 2 या 2.5 साल तकरीबन प्रयास में रहा। ऑब्जर्वेशन होम फॉर बॉयज़ जो यहाँ पर दिल्ली गेट पे है, यहाँ रहा मैं 2 साल। और लेकिन जिस समय आपके हाथों ये एक ऐसा वाक़या हुआ, उस समय ऑब्वियसली आप कह रहे हो कि आपको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज नहीं था कि आप एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हो। हाँ। वो एक इम्पल्सिव आप हो गए और उस समय आपने ऐसा कदम उठाया। हाँ, बस ऐसे ही होते होते बात बढ़ती चली गई और हो गया। ना ही ये पता था कि ऐसा हो जाएगा, ना ही कोई प्लानिंग, कुछ भी नहीं था। और आपके जो साथी थे उन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं किया था? नहीं, सबके सब ऐसे ही थे, मतलब घूमने फिरने वाले, लड़केबाजी में ऐसे घूमते रहते थे, बाहर घूमना, घर में नहीं रहना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना। ये सब चीज़ें उस समय थी, पर कोई प्लानिंग या किसी चीज़ का नहीं था, बस वो सबके साथ मिलके एक ग्रुप में, और ऐसा हुआ। ओके, आपके पास एक सज्जन बैठे हैं, उनको माइक दीजिए। हाँ, आपके साथ क्या वाक़या हुआ था, किन परिस्थितियों से आप गुजरे और आज आप क्या कर रहे हैं? मैम, मैं तकरीबन 15.5 साल का था जब मेरे साथ एक वाक़या हुआ जिसमें मैं कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था और उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया जिसमें मेरा भी नाम आया और मैं उनके साथ प्रयास गया, द ऑब्जर्वेशन होम फॉर बॉयज़ दिल्ली गेट। बट उसके बाद निकलने के बाद बहुत सोचा, वहाँ पढ़ाई की, पढ़ाया भी लोगों को, जो वहाँ पे बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाया भी, और शुक्रगुजार हूँ मैं पांडे सर का जो इन्होंने आज मुझे बुलाया है। और आज मैं यहाँ एडवोकेट हूँ और मैंने मेहनत करी, पढ़ाई की और बहुत कुछ जो लाइफ में खो गया था उसको वापस हासिल किया। और मैम, बहुत लाइफ का मतलब मैं शुक्र मानता हूँ कि बहुत दूसरी घटनाओं से मैं बच गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ सकूँ कि जिन सिचुएशंस में आपके साथ ये घटना हुई या आपने वो चीज़ की, क्या आप आज शेयर करना चाहेंगे कि वो क्या वाक़या था जिसने आपको एक वो ट्रिगर दिया वो काम करने के लिए? या मैम, काम का बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि जो कर रहा है वही यहाँ बैठा है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किया भी नहीं और वो बैठे हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है मैम, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि संगत
मैं जो भी बैठे हैं यहाँ पे नई उम्र के लड़के भी हैं, हम तो निकल चुके हैं इस उम्र से, तो मैं उन्हें सिर्फ यही बताना चाहता हूँ अपनी बातों से कि जो संगत है उसको थोड़ा कम कीजिए, गलत संगत से बचिए और थोड़ा माँ बाप की बात मानिए, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई ख़त्म नहीं हो जाती लाइफ, कुछ गलत हो जाने से कोई ऐसा नहीं होता कि लाइफ ख़त्म हो गई। राइट। ऐसा होता है कि लाइफ आपको अपने हाथ में है कि आप किस तरीके से उसको संवारते हैं। Right. We'll come back to Thank some you. more stories a little later. Now, let me go across to the panel. I'd like to start with you, Mr. Amod Kant. Why do you think that day by day, despite all the legislative framework which is in place, you have effective mechanism within the society which can actually curtail things? But despite that, there is a rising graph as far as the teenage crime in the country is concerned. Despite efforts being put by people like you, why is there no control? Since you're asking a basic question, before I came here and otherwise also, I have taken the account that what is the figures, what are the figures like. And let me inform you that the crime figures or the crimes committed by children is not alarming at all. Let me clarify. Okay. See, number one that I found 2016, there are nearly, total number of crimes committed in India is nearly 48 lakhs. Which includes nearly 21 lakhs IPC crimes, Indian Penal Code crimes, and other laws, 19 lakhs, okay, 48 lakhs. Out of 48 lakhs, the children committed only 35,000 crimes. Okay. 35,000 means less than 1%, 0.7%, less than 1%. Children constitute 42% of population. And the children who are bigger also, above let's say 12, 13, 14, who may commit crimes, they are also in huge numbers. I mean, they are about 25% of population. So that is one. Now let me further elaborate. Murder, for example, there are about how many? Nearly 38,000 murders are committed. Last figure I am giving you, 38,000 murders. Out of that, the children committed about 1,700 murders. That figure is still less. Rape, for example, rape also is 17,000 rapes committed. The children committed less than, let's say, 16,000, 1,600. So the basic number of crimes committed by children is not all that high. Yes. They have committed theft, nearly 9,000, other crimes, for example, 10,000 out of 35,000. So first of all, let us place things clear that the number of crimes committed by children in India is not all that high, not all that alarming. That is one very important point. Secondly, when the child commits a crime, then, the commission of crime is FIR or maybe the case is being registered. Whether they have committed or not, here also this young advocate who was, let's say, involved in a crime, now, he is not prepared to admit that he committed a crime. Right. He could be in a group. He could be in a kind of gang also at times. Right. So the basic issue is that आप जैसा इसने कहा कि संगत में आप करते हैं या किसी ग्रुप में करते हैं. देखिए इस देश का माहौल ऐसा है, यहाँ पे बच्चे हों, युवा हों, कोई भी हो, एक वायलेंस का माहौल है, एक पॉवर्टी का माहौल है, एक इनइक्वालिटी का माहौल है. तो in that kind of situation, crimes तो बढ़ेंगे. Right. Overall crimes Right. may increase. So children should not be targeted that they are the criminals. I don't think Indian children are so criminal. We are not at all saying that those children are criminals, but we have to bring before the society as to how alarming the situation is. I'll go to Dharmen. Do you also agree with what Mr. Amod Kant is saying? If you don't go by the numbers, but as far as the reportage of such cases is concerned, the way media is hyping up violence and aggression in the society, do you think that the time is ripe for the society collectively to ponder on something seriously, which is really seriously something has gone wrong? नहीं, very largely I agree with sir what Amod sir said. देखिए हम क्या करते हैं, we are discussing as per the event, what exactly happened, what a particular child did in what conditions, but actually he indicated about the environment, in what environment a child is living or what environments are leading to particularly formation of his mentality. Now what is happening कि कोई मीडिया में अगर अटेंशन आ गया तो वो न्यूज़ आ गई, टीवी पर आ गई, लेकिन आप पाएंगे लार्जली बच्चे जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, इतनी उसमें जेंडर इनइक्वलिटीज़ हैं, इतनी वायलेंस है, कोई उनके ब्रीफिंग का परिवार के स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है. और आप पाएंगे जो हमने ऑपरेशन स्माइल चलाया था, आई इंडिविजुअली फाउंड दैट द लैक ऑफ प्रॉपर पेरेंटिंग, it's a very big reason why our children they are going haywire before attaining a mature age. Why they are not accommodating themselves according to the social norms. The reason is that they are quite disturbed. आप पाएंगे कि एग्जामिनेशन का प्रेशर है, भाग गए,
जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे मुंबई के फिल्मी सितारा बनना है, फिल्म एक्टर बनना है, चले गए, घर से भाग करके चले गए। छोटे छोटे रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे पलायन कर जाते हैं। कई बार उन स्टेप फादर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा रीज़न है। अब डोमेस्टिक वायलेंस इज़ ए सोशल फिनोमिना, लेकिन तो आप पाएंगे कि बच्चों के कई सारे कारण हैं और उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है सामाजिक जो सोशल डेविएशंस हैं उससे बहुत ज़्यादा है। दैट इज अ वेरी बिग रीजन। पुलिस के चीज़ें देखने का नज़रिया कुछ और होता है और एक जो आम इंसान है, अब जैसे आशा देवी जी हैं, शी इज़ द फेस ऑफ अ मूवमेंट, a Nirbhaya movement which actually shook the conscience of the nation. आशा जी, आपको क्या कहना है कि क्या सिचुएशन एक्चुअली में इतनी अलार्मिंग है आपके हिसाब से? क्योंकि आप एक मूवमेंट का फेस हैं आज देश में, आपके हिसाब से सिचुएशन कैसी है? क्योंकि निर्भया का जो केस हुआ उससे पूरी तस्वीर सामने बदल कर आ गई है, चाहे वो लॉज हो कंट्री के, चाहे सेंसिटिविटी हो पुलिस की तरफ से, चाहे सेंसिटिविटी हो एनजीओज की, वो सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो आपके हिसाब से सिचुएशन कैसी है? देखिए, सिचुएशन मैं पीछे नहीं जाती, लेकिन 5 साल में कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अच्छा, चाहे अपनी कानून व्यवस्था से हो, चाहे संस्था से हो, चाहे पुलिस विभाग से हो, बहुत अच्छी नहीं है। कुछ बदली है, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है, जैसे बच्चे हैं, अपराध और गलतियां में फ़र्क होता है। गलतियां हो गई, मान लो किसी का छोटा सामान चुरा लिया, किसी को 2 झापड़ मार दिया, गलती हो गई। लेकिन जो बच्चा किसी का मर्डर कर सकता है, किसी के साथ क्राइम कर सकता है, जैसे निर्भया के साथ होगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? चलिए मान लीजिए उसको छोड़ दिए, बच्चा है, छोड़ दीजिए, लेकिन शायद वो ना करे, लेकिन उस स्कूल, जिस स्कूल का बच्चा है, जिस पड़ोस का बच्चा है, जिस माहौल का बच्चा है, उस उम्र के बच्चों में इसका बहुत बड़ा गलत संदेश जाता है और वहीं पे क्राइम बढ़ती है कि उसे नहीं हुआ तो हमें क्या होगा। तो मैं ये नहीं कहती कि सबको पकड़ो और जेल में डालो, सबको सजा दो। आपके कहने के हिसाब से जिन्होंने ऐसे कड़े अपराध किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अपराध में बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। आज आप सुने होंगे, कुछ महीने पहले एक 7 साल का बच्चा है, मैं उनके घर में उनके परिवार से मिली हूँ, घर गई हूँ। हम कह तो देते हैं कि बच्चा है, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप उस घर को क्या मौका दोगे सुधरने का? जिसके घर में एक चिराग है उसको क्या सुधरने का मौका दोगे? हमें कोई क्या बदलने का, हमें कोई क्या समझाएगा? मैं कैसे 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 जीती हूँ? तो तभी भी मैं यही कहती थी, आज भी यही कहे कि गलती और अपराध में बहुत फासला होता है। तो गलती माफ़ी हो सकती है, लेकिन अपराध को माफ़ नहीं करना चाहिए। अपराध का माफ़ करना, हम उस उम्र के बच्चों को हाथ में सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप इस उम्र तक कुछ भी कर सकते हो। अपराध का बढ़ावा देना है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, गलती माफ़ कीजिए, लेकिन अपराध नहीं। Dr. Desai, if I could come to you, are the things psychologically really bad? As Mr. Amod Kant is saying that the situation is not so alarming as it is projected everywhere, but you are dealing with such kind of offenders on a daily basis. Where have things actually gone awry? The delicate part is that many professions, but some of us, especially in mental health and some other fields, actually deal with both. Okay. We deal with offenders and victims and their families, you know, and sometimes on a given day. And so that actually gives you a little more complete picture, but it also actually shakes you up. You know, मैं आशा देवी जी के भावनाओं से और तजुर्बे से बहुत सिंपैथाइज करता हूँ, लेकिन एक मुद्दा शायद हमें ये भी समझना पड़ेगा कि समाज और समाज का जो प्रतिबिंब है, मीडिया ओनली रिफ्लेक्ट्स द सोशल थिंकिंग बाय एंड लार्ज। इट माइट डिटरमाइन टू, समाज इसको गंभीरता से देख लेता है, अलार्मिंग लग जाता है, बिकॉज देयर आर सम आइसोलेटेड इवेंट्स दैट सीम टू क्रॉस द लिमिट्स। वो जो कुछ वाक्य, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो ऑलमोस्ट बिभत्स दिखती हैं,
She has undergone a moment she like has that. gone through, and so like she said correctly, जैसे इन्होंने सही कहा, इनके और इनके जैसे परिवारों को समाज क्या कह सकता, जिनके लिए जीवन भर की जो समस्या रही। Absolutely. लेकिन वो अपनी जगह है, जो अमोद जी ने कहा है, ये भी सोचने लायक है कि भावनात्मक रूप में इंसान बह जाए, एक व्यक्ति या समाज कुछ समय के लिए, ये समझा जा सकता है। लेकिन अगर साइंटिफिक डिस्पैशनेट एनालिसिस करके पॉलिसी बनानी है या सामाजिक सोच बनानी है, तो आंकड़े बड़े क्लियर हैं। और दूसरा एक और पहलू है, रिपोर्ट आज बढ़ रही है, जो आपने कहा, रिपोर्ट आज इसलिए बढ़ रही है कि समाज की सेंसिटिविटी, समाज की निर्भीकता रिपोर्ट करने की, और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सेंसिटिविटी रिपोर्ट एक्सेप्ट करने की, वो बढ़ रही है। सो मैं बल्कि विवाद में ना पड़ते हुए, लेकिन एक चीज कहना So चाहूंगा, you see this as a positive signal? आई डू सी इट एज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि है ना जी, अब तक जो चीजें छुपाई जा रही थी वो निकल के बाहर आ रही है। बट एक मिनट के लिए मुद्दे पे फिर जाएं, जो एक्सट्रीम वायलेंट क्राइम्स हैं, जो आशा देवी जी के साथ गुजरी, इनके परिवार के साथ गुजरी, दैट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन एंड शुड नॉट डिटरमाइन आवर ओपिनियन और आवर रिस्पॉन्स। जरूर, जैसे आपने कहा, एंड एवरीबडी सेड 5 साल पहले इट शुक द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन एंड द सोसाइटी, यस, बट अलोंगसाइड द शेकिंग ऑफ द कॉन्शियंस वी ऑल्सो नीड टू रिटेन द ऑब्जेक्टिविटी। थोड़ा हमें पीछे हट के देखना पड़ेगा, सच्चाई क्या है, जो अमोद जी ने बताई। तो दोनों बातें अपनी जगह सच है। एक और चीज़ जो है वो ये है कि जो हमारे दो साथी कह रहे थे, और हम लोग बहुत अक्सर देखते हैं, हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस या लीगल सिस्टम, आधुनिक जो वर्तमान लॉ है, कानूनी सिस्टम है, उसके पीछे सोच क्या है एडोलेसेंस या टीनेज को एज एडल्ट्स नहीं ट्रीट करने की। इट इज़ साइंस ये कहता है, विज्ञान हमें ये कहता है, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये कहता है कि 18 या 21 साल की उम्र तक पूरा मानसिक विकास हो नहीं पाया होता है कि व्यक्ति जज कर सके। जैसे इन दोनों ने बताया, उस नाजुक उम्र में शायद जो गलती थी, गलती न रह के क्राइम बन गया। Right. नाउ दैट जजमेंट इज डिफिकल्ट एट 13 और 14, ये साइंस क्लियर कहता है, और इसलिए साइंस से प्रेरित होके कानून ने उसको थोड़ी रियायत दे दी। Okay. राइट जैसे मैं आशा देवी से अभी भी शायद सहमत हूँ इस मुद्दे पे कि जो बहुत गंभीर एक्सट्रीम एग्जांपल्स है, वहाँ जैसे पार्लियामेंट ने कानून बनाया, जस्टिस वर्मा ने कमेटी ने कहा था कि आइसोलेटेड केसेस में अंडर 18 को आप एज और इसीलिए वो जेजे एक्ट चेंज भी हुई आपके पूरे और वो मूवमेंट अच्छी बात है। Right. लेकिन उसी ब्रश से सारे वाक्यों को, Absolutely. सारे ऑफेंडर्स को आप पेंट करोगे तो सामाजिक रूप से बहुत बड़ी गलती करोगे। Let me just come back to a few more case studies who are here. आपका नाम क्या है? हाँ, माइक दे दीजिए उनको प्लीज। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मैं जमुना पार्क का रहने वाला हूँ, सादरा। और मैं आपको, आप कितने बड़े थे, आपके साथ क्या वाकया हुआ था? ये करीबन 2005 का वाकया था और मैं 15 साल का या 16 साल का था। उस टाइम मेरे घर की मतलब आर्थिक स्थिति जो मतलब बहुत ही नाजुक थी। मैं काम करता था सिलाई का, और उस दिन मैं जल्दी से घर पे आ गया काम से, और मेरे फ्रेंड्स जो थे साथ में रहते थे वो स्कूल पढ़ते थे, और अचानक वो आए, बोले कि मेरा झगड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, ये मेरे दोस्त को बहुत मार रहे हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने कहा स्कूल में जाऊंगा तो फिर वहाँ पे कोई बात होगी। बोले कोई बात नहीं होगी, आप चलो। मैं चला गया साथ में, और वहाँ जाके फिर देखता हूँ कि वहाँ पे मतलब जो स्कूल के लड़के जो पढ़ता था उनके ही आपस में झगड़ा हुआ था। फिर वो उसको मारने लगे, जो मुझे बुला के ले गया था। और हम करीब 2-3 लड़के और थे मेरे साथ में जो वहीं रहते थे, वो भी मेरे साथ में गए। तो उसमें हाथापाई हुई, तो उसमें एक लड़का और जो साथ में था हमारे, उसने उसको चाकू मार दिया और वो लड़का मर गया। उसमें मैंने उसको पंच भी मारा था। मैं अपने सब बचाव के लिए लेके गया था कि कोई स्कूल में कोई बात ना हो, लेकिन वो जब हम पे झपटा तो फिर मैंने अपने बचाव के लिए उसको मारा, तो उसके चोट लगी और उसने चाकू मारा जो मेरे साथ में था। फिर वहाँ से फिर हम प्रयास बाल गृह में आए, वहाँ मैं 18 महीने रहा। तो आपको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब ये वाकया हो रहा था तो इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसके मतलब होंगे? ये हम ये सोच के नहीं गए थे हम उसे मारने जाएंगे, बस ये था कि हम झगड़े में जा रहे हैं, लेकिन मन में ये नहीं था कि हम उसे जान से मार देंगे या फिर हमें उसे मारना है। हम तो उसे जानते भी नहीं थे। खैर हम गए, उसके बाद वो लड़का मर गया, हमें पता भी नहीं था। जब वो चाकू मार के हम तो आ ये गए, बात आपको बाद में पता चली कि उस लड़के की डेथ मृत्यु हो गई है, वो हमें बाद में पता लगा जब हमारे घर पे पुलिस आई और मेरे को लेके गई। उन्होंने बताया कि आपने उसको मार दिया है
तो मैंने बोला मैंने नहीं मारा, खैर मुझे तो पता नहीं था, बाद में पता लगा वो मर गया। Right. खैर फिर उसके बाद मैं प्रयास में पहुंचाया गया मुझे। 18 महीने मैंने वहाँ का जो स्टाफ था, अब मुझे गलती का भी एहसास था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अब जो क्राइम मेरे पे और लग आपको गया इस था। बात की भी फीलिंग थी कहीं ना कहीं कि आपसे वो कोई गलती हुई है, कोई Feeling- पश्चाताप आपके मन में था उस वो समय? आज भी है, Okay. उस टाइम भी थी और आज भी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद जब मैंने कुछ प्रयास में आके मैंने बहुत सी बातें सीखी। वहाँ के जो भैया दीदी थे, उन्होंने बताया कि भाई हमें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए और आपको घर में कैसे रहना है। वहाँ से 18 महीने बाद जब मैं वहाँ से निकला हूँ और मैंने इतनी मेहनत करी, और फिर उसको करने बाद आज मेरी एक जींस की रेडीमेड फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ, मैनेजर तौर पे ही नौकरी करता हूँ। और भी जितने भी लड़के वो मेरे साथ में थे, मैं उनको ये समझाता हूँ भाई मेरे से जो गलती हो गई आगे से ध्यान रखना, कोई गलती मत करना। कभी कभी मैं जाता भी हूँ, प्रयास भी जाता हूँ। और जहाँ पे वहाँ आप के काम बच्चों को। करते हैं, आपके लिए कभी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि आपने किसी को मारा या क्या? आज आप वो हमारे यही यहाँ काम कहते हैं कि कर रहे आपने कुछ करा ही नहीं है, आपको फंसा दिया गया। मैंने नहीं, मेरे से गलती हुई है। सबसे बड़ी गलती है कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती वो है। और मैं गया हूँ तो उसका मुझे पछतावा रहेगा, हमेशा रहेगा कि मैंने ये गलती करी है। लेकिन अब मैं उसको यही कर सकता हूँ कि आगे के लिए मैं और बच्चों को यही सीख देना चाहूँगा कि जो मेरी संगत जो थी, संगत में मैं चला गया, गलती मैंने करी है, वो आप लोग ना करें। जो भी काम आप ना करें, आप सोच के अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से वो करें और अपने माँ बाप का कहना माने, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे तो आगे कभी परेशान नहीं होंगे। तो आप तो एक ब्रेव हार्ट हो, आपके साथ एक वाकया हुआ, कोई किन परिस्थितियों में कुछ ऐसा हुआ और आप उस चीज़ से निकल के आए। धर्मेंद्र, इफ आई वुड कम टू यू, how do you really analyze cases like these? He's regretting what had happened, in what situations he committed the crime. Now, what is the prism through which the police actually looks at such cases? Because many times we ourselves during our reportage days have seen that police is very insensitive to such matters. ठीक है, वो अगर हवलदार एक पुलिस स्टेशन में आपको मिलेगा, बैठा होगा, भाई आप हमारा केस रजिस्टर करिए, हवलदार बोलेगा अरे ठीक है करते हैं। But you know, this kind of a sensitivity, have these things really changed with the way the police is handling such cases? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। उसमें जैसा अभी अमू सर ने बताया कि हम सारे क्राइम्स को एक साथ नहीं कर सकते। अपराध भी कई तरह के हैं, जैसे छोटा अपराध थेफ्ट हो गया, या कोई ऐसी छोटी मोटी गलती कर दी, आपस में फिजिकल असॉल्ट कर दिया, इस टाइप के जो क्राइम्स हैं उसमें तो पुलिस जो है उसको कोशिश करेगी कि दोनों पक्षों में आपस में बैठ जाएं, समझौता कर लें, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ग्राउंड लेवल पे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, जैसे रेप हुआ, मर्डर हुआ, इस टाइप के जो ऑफेंस है उसमें तो पुलिस जो है उसको डील करती है। लेकिन वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगेन इट्स ए क्वेश्चन। बिकॉज अभी आप देखेंगे कि जो जे एक्ट बना, उसके बाद में जो जे रूल्स 2007 में बने, सुप्रीम कोर्ट की 2013 में BBA के बाद में बड़ी गाइडलाइंस आई उनकी रिट के बाद में, सब में ये कहा गया कि हर थाने पे एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर हो। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ पुलिस, हाउ दे देमसेल्व्स आर सेंसिटाइज्ड, how they should tackle such crimes. तो आपके कहने का क्या मतलब है? I mean, the JJ Act has been implemented, the changed one. I'm talking about the 2015 JJ Act. You say that the things still haven't changed on the ground. When you say, do you mean that the procedures are still pending to be laid down actually the way they should be implemented? Are you trying to tell me that? I think I should make a very candid admission at this point that we still need a lot of sensitization. ठीक है, अवेयरनेस हुआ है, जैसा अभी माता जी की बेटी के साथ जो हुआ और जो इस टाइप की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद पुलिस में भी अवेयरनेस आई है, मीडिया का प्रेशर बढ़ा है, NGOs की जो एक्टिविज्म है दैट हैज कम अप, बट एट द सेम टाइम वी स्टिल लैक अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। किसको ट्रेनिंग? जैसे आप कह सकते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनका अलग है, लेकिन हमारा जो कांस्टेबल है, जो सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर है, उसको जो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए वो तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे लगता है उसमें अभी काफी भी we are still to improve yet, Mr. Mahmood, despite all efforts. But जो first point of contact है पुलिस स्टेशन में, वो obviously आपका कांस्टेबल या SHO, many times it is SHO, but the first point of contact is obviously the constable. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा इस पे काम करना है और बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है despite all the legislative framework which is in place? देखिए, ऐसा है कि मेरा तजुर्बा थोड़ा अजीब है और लोगों के Please मुकाबले। feel free to share that. नो लाइक 34 साल मैं रहा पुलिस में, 30 साल प्रयास के हो गए। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं प्रयास के, करीब 14,000 बच्चे फिरोज शाह कोटला होम से निकले, 14,000, लेट मी इन्फॉर्म यू, एंड दिस इज जस्ट इलस्ट्रेटिव स्टोरी। आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू एडमिट देयर क्राइम्स, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। रही बात कि उन्होंने जितनी साफगोई से अपनी कहानी कही, वो अपने आप में काफ़ी होना चाहिए ये समझने के लिए
कि बच्चों के अपराध होते क्या हैं, बच्चे अपराध में क्यों गलती से शामिल हो जाते हैं। 50% आबादी भारतवर्ष की गरीब है, बेसहारा है। हर साल जो एक एनालिसिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कंडक्ट्स एनालिसिस एवरी ईयर ऑफ द चिल्ड्रन हु कमिट क्राइम। उसमें ये पता लगा कि करीब करीब 70% बच्चे ऐसे होते हैं, ये तो तभी भी ठीक ठाक थे कि इनको पढ़ाई लिखाई थोड़ी हुई, 70% चिल्ड्रन डो नॉट हैव लिटरेसी, दे आर आइदर इलिटरेट और दे आर स्कूल ड्रॉप आउट्स और दे हैव नो मीन्स बिकॉज ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और करीब करीब ये बहुत बड़ी संख्या बच्चे होते हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांशियल कंपल्शंस की वजह से अपराध में चले जाते हैं। और वहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र ने ठीक ही कहा कि एकदम डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो ऑर्डिनरी क्राइम, आशा मित्र हैं, आशा के साथ मैं बहुत काम करता हूँ और शायद ये निर्भया के केस से मेरा ताल्लुक़ भी था, गहरा ताल्लुक़ था उस ज़माने में। देखिए, मोटी सी बात यह है कि गलतियाँ हर कोई करता है और कहाँ से गलतियाँ आशा अपराध की सीमा में लांघ जाता है, ये सोचने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ ज़रूरत होती है समाज की, परिवार, समाज या पुलिस, दे मस्ट चेक द चाइल्ड एट दैट पॉइंट वेयर द चाइल्ड इज़ कमिटिंग स्मॉलर थिंग्स। जहाँ गलतियाँ वो कर रहा है, कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, वहाँ पे आप चेक कर दें तो बड़े अपराध नहीं होते। But how do you deal with cases which are coming because of the lifestyle changes? You want to say something, sir? रिफॉर्म, प्रिवेंशन एंड रेट्रीब्यूशन और पनिशमेंट, ये 3 मुद्दे हैं। हम पनिशमेंट को अगर बड़ा सा हथियार बना लेंगे तो सामाजिक भला नहीं करेंगे। जैसे अमोद जी ने कहा, प्रिवेंशन कर पाए बहुत अच्छा है, जहां संभव हो रिफॉर्म कर पाए। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो अति गंभीर और विभत्स क्राइम किए जाते हैं इवन कुछ किशोरों के द्वारा, उनके लिए कुछ प्राविधान अलग हो, उनकी प्रोसेसिंग अलग हो, लेकिन उससे प्रभावित होकर अगर समाज और कानून हर एक टीनेज क्राइम को सीवियरली डील करने लगेगा तो दैट बी द बिगेस्ट डिससर्विस, बिकॉज हम समाज को और उस दिशा में धकेल रहे हैं। Right. तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि रिफॉर्म संभव है। मैं एक मुद्दा और कहना चाहूंगा, मुझे विचार आ रहा था इन तीनों की कहानी सुन के, खासकर इन्होंने जो कही, नहीं, आप सोचिए कि तो एग्जांपल्स है। Yes, That's why I call them They're very bravehearts, hard stories. because they have come out of a process. and that issue and that issue of a mistake becoming a crime, मैं एक बार कहना चाहूंगा, मौजूदा कानून और वर्तमान आधुनिक कानून वयस्क व्यक्तियों को भी 30, 40, 50 की उम्र में भी क्राइम्स ऑफ पैशन का कंसेशन परमिट करता है। Right. जो बच्चे हैं 12, 13, 14 साल के, उनसे अगर जजमेंट में गलती न बन के क्राइम बन जाए तो वी डोंट हैव टू बी प्यूनिटिव। पूरी सिंपैथी और इज्जत आशा देवी जी और बाकी सब ऐसे परिवारों के साथ रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति विशेष या परिवार अगर बदले की भावना से प्रभावित हो तो वो फिर भी वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। Now, लेकिन समाज, सोसाइटी कैन नॉट एंड शुड नॉट बिकम हैप्पी अबाउट प्यूनिटिव जस्टिस। That would be terrible. You made an important बहुत point सही before. कहा तुमने। आप लोग में से कोई अभी कुछ कहना चाहेगा? आपके बगल में एक साथी बैठे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोल, आप उनको माइक दे दीजिए। मैं मैडम जी की बात पे कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आशा देवी आपसे बात कर रहे हैं, हाँ बताइए। जैसे कि मैं उस समय 14 साल का तकरीबन था और अगर मेरा क्राइम समझ के और मुझे सज़ा दे दी जाती, जो भी वो 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, मैं जेल में रहता, तो मुझे लगता है आज मैं जहाँ हूँ नहीं पहुँच पाता। आज मेरे घर के हालात उस समय बहुत ही बेकार थे और आज अल्लाह का करम है, बहुत बढ़िया है। घर भी बन गया मेरा, 2 भाइयों की शादी करी, निकलने के बाद, प्रयास से निकलने के बाद 2 भाइयों की शादी कर ली, अपनी भी शादी कर ली, मेरी एक बेटी है। और मैंने सोचा क्या कर सकता हूँ, जो मतलब जो हो गया वो तो हो चुका है, ठीक है, पर मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हो चुका है। आप कुछ बोलेंगी ऐसे केसेस के बारे में जो कि उस चीज से बाहर निकल के आए? नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अभी की कही कि गलती और क्राइम इसको अलग रखना पड़ेगा, चाहे संस्था हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो। क्राइम और गलती दोनों अलग, बहुत फासला है। इन्होंने कहा ठीक है, इनको मौका मिल गया, बिल्कुल ठीक है मैडम, लेकिन उस बच्ची को, अभी आती हूँ आपके पास, उस बच्ची को एक मौका मिला, वो 7 साल का बच्चा था, उसको एक मौका मिला। तो मैं ये, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं, चाहे बच्चे बैठे हैं, बच्ची बैठी हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि जो 2 झापड़ किसी को मार दिया उसको भी पकड़ के जेल में डालो, किसी का 10 रुपया चोरी कर लिया उसकी भी जेल में डालो, लेकिन मर्डर और क्राइम
इसके लिए समाज को, सिस्टम को सोचना होगा, क्योंकि एक की बात नहीं। मान लो मेरी बेटी के साथ एक बच्चे से गलती हो गई, ठीक है, लेकिन आप बताइए, आप हमसे ज्यादा मालूम होगा कि उस 5 साल के दौरान कितने बाल अपराध हुए हैं, कितने बच्चियां मर गई हैं। ओके, तो इसलिए मैं अभी भी, मैं सबका अपना अपना काम है, आपका अपना काम है, सर का अपना काम है, हमारा अपना काम है। एवरीबडी इज फ्री टू हैव देयर ओन ओपिनियन। गलती और क्राइम दोनों को अलग रख के हमारे कानून व्यवस्था को, हमारे संस्था को, चाहे समाज को सोचना पड़ेगा। So this is what her opinion is, how the system can be strengthened. हर रोज हो रही है। बिल्कुल। आशा जी, मैं अभी मिस्टर कानूंगो के पास जाऊंगी। आई एम टोल्ड ही इज कनेक्टेड। मिस्टर कानूंगो, हाउ वुड यू लुक एट द प्रेजेंट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन द कंट्री, बिकॉज द जनरल परसेप्शन इज दैट the juvenile justice system lacks tooth somewhere. The police is getting sensitive, the society is getting sensitive, the media reportage is increasing. But what about the Juvenile Justice Board? What about bodies like NCPCR? How are you really handling sensitive cases like these? Are you well equipped to do that? देखिए, जहाँ तक आप कमीशन की बात करते हैं और सरकार की बात करते हैं, तो कमीशन का जो काम है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मॉनिटरिंग का काम है। इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, और इसमें ये सारे सिस्टम के पार्ट्स शामिल हैं, सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, चाहे वो पुलिस हो या जे बोर्ड्स हो। हम लोग निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2015 में नया कानून आया है, और इस कानून को पहली बार देश में ऐसा कानून बनाया गया जिसमें बच्चे से संबंधित सभी एस्पेक्ट्स के बारे में गहन चिंतन किया, गहन मनन किया, और देश के बेहतरीन विशेषज्ञों ने इस कानून को तैयार किया। लेकिन इस कानून मैं अभी आती हूँ आशा जी, पालन की के बात पूरी लिए कर लूं। 2016 में रूल्स आए हैं, और अभी थोड़ा समय लगेगा कि हम नीचे तक इस कानून को सेंसिटाइजेशन सभी का कर पाए, और खास तौर पर जब पुलिस वालों की बात होती है तो उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो पाए। इसके लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं। हाँ। और जैसे जैसे ये कानून का प्रसार होता जाएगा जी, और हमको लगता है इस कानून के बेहतर रिजल्ट। कानूंगो जी, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। आशा देवी वांट्स टू स्पीक टू यू, शी हैज अ पॉइंट। जस्ट लिसन टू हर व्हाट शी इज सेइंग। यस आशा दी। देखिए, मैं उस टाइम भी हमारा यही था तभी भी 18 साल का जो कानून था, तो यही था कि 18 साल से कम का बच्चा का चाहे क्राइम करेगा, चाहे मर्डर करेगा, चाहे चोरी करेगा, एक ही सजा है। तो ये गलत है। अभी भी जो उम्र घटा दी गई है 2 साल, उसमें भी यही है। लेकिन मैं अभी भी यही कर रही हूँ कि इस एक कानून में भी संशोधन की जरूरत, क्योंकि आप सबकी कैटेगरी एक मत रखिए। किस संशोधन की बात कर रही हैं? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो 16 हुआ है, तो इसमें यही हुआ है कि 18 से 2 साल कम हो गया, 16 हो गया। लेकिन सजा तो वही हो गई कि जो एक क्राइम करेगा उसको भी 3 साल की, जो मर्डर करेगा उसको भी 3 साल की हुई। ओके। और जो छोटी सी चोरी करके जाएगा वो उसकी भी। हाँ, तो आप बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ बताइए, आप बोलिए। उनको दे दो। हाँ मैडम, देखिए, इसमें बच्चे जो है एक बहुत मिनट मिस्टर कानूंगो, आई विल जस्ट कम टू यू, लेट दिस पर्सन स्पीक। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो है, मान लीजिए कि माँ है, माँ का दिल जो है बहुत बड़ा होता है। अगर उस पर पोटी कर दिया जाता है, क्या जांग को काट दिया जाता है? आपने अपना नाम नहीं बताया सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार झा है, जी। मैं प्रयास में वेलफेयर ऑफिसर हूँ। और एक्चुअली जो है, मैंने वहां पर जैसे सर ने बताया कि 16,000 बच्चे को मैंने देखा, और खास करके मैं ऊपर हाई लेवल की बातें नहीं करता हूं, मैं प्रोवर्टी लेवल की मैं बातें करता हूं। जो झुग्गी झोपड़ी से बच्चे आते हैं, आखिर रेशियो उसी का ही क्राइम का ज्यादा होता है। क्यों होता है? इसका कई कारण है। इस सबसे बड़ी चीज है, एक सबसे बड़ा चीज है कि उनको मतलब खाने का मिलता नहीं है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, बेसिक चीजें नहीं मिल रहा है। अगर बेसिक चीजें नहीं मिलेगा, वो चोरी करेगा। बहुत सारे गैंग होते हैं, गैंग उसको मतलब कवर कर लेता है, और वो गैंग करके, जैसे एमपी का बहुत सारे केसेस होते हैं, ये मैं देखता हूं। झारखंड के कुछ केसेस आते हैं उसमें। ये तो आपने लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम, बट ये एक तबका है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर देसाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, इट्स नॉट ओनली द लो इनकम ग्रुप्स व्हिच आर गेटिंग अफेक्टेड। आशा दी, आई जस्ट कम टू यू। वो किसी के साथ रेप नहीं करते, जो भूखे हैं किसी को मर्डर नहीं करते। भूखे बच्चे क्या करते हैं? किसी की दुकान से 10 रुपए की चीज उठा ली, किसी के हाथ से 2 रोटी छीन ली। बच्चे क्राइम नहीं करते हैं, बच्चे मर्डर नहीं करते हैं। अभी पता नहीं यहाँ पर कोई बोल रहा था कि हमने पंच लेके गया था, तो उसके दिमाग में था कि हमें झगड़ा करना है, तो इसलिए वो पंच लेके गया, तो उसके दिमाग गलत लेके गया। किया
पंच कर दिया लेके आखिर लेके गए तभी तो We- किया। we- we get your point. हाँ. पंच किया मैंने हाथ बहुत से सारे पंच। बच्चों को, मैं एक my बच्चे दो question बच्चे to- की बात नहीं no, कर no, रहा। I'm going to come to हाथ से Dr. पंच Desai. किया, No, नहीं वो लगा के Asha भी तो ji, रखते हैं। Asha ji, I वो have to गलत समझ रहे I हैं, have to गलत incorporate Crucial lot many मुद्दा other ये है। points as part of the गलत discussion. समझ- Dr. आगे बढ़ें Desai, हम लोग, आगे what, बढ़ें। what मुद्दा I ये है। want to ask you is that this is just one group. I will come to you, sir. Yes, sir. This is just one group he's talking about. But what about the trend which is rising, where you have people from the higher and the middle income groups also rising? I mean, children are getting exposed to a lot of aggression, a lot of violence through television. What about games like Blue Whale? This is another trend which is totally at a tangent. Now, how would you really explain this trend? बहुत What सारी- are the children hungry for if they are going into streams like these? जो मैं आज यहाँ देख रहा हूँ, एक बड़ी सेटिस्फाइंग चीज़ है जो मिस्टर झा जैसे लोग ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, जो एनजीओ के हमारे साथी और पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं, और जो विज्ञान कहता है हम अस्पताल में पाते हैं या बुक्स जो कहती हैं, Right. उसमें बहुत कुछ साम्य है. द एक्सपीरियंसेस आर ऑल वेरी सिमिलर इन एज मच एज दैट इन तीनों ने कहा था, अगर आप लोग सब याद करें, तीनों के जो क्रिमिनल एक्ट्स हुए वो ग्रुप बिहेवियर में हुए. Right. See, one of the most important things that we forget is alcohol, drug से प्रेरित हो, बाकी लाइफस्टाइल से प्रेरित हो, like you are saying, criminal acts, especially by teenagers and juvenile persons, happen in group situations. And so, like Amar ji was saying, अगर preventive action हो पाए, तो बहुत अच्छा होगा. वो preventive action first level पे क्या है? Are the parents, families and schools, families and the schools, both. families and the schools. Peer group influence I जो have है, a few children who are here from the schools as well. The butterfly group which came to us. Just go give the mic to one of the children. I want to ask them a question. Give them the mic, please. हाँ. अच्छा आप लोग I'll just come to you, Dr. Desai. आप लोग बाल सभा से अटेंड करते हो अलग अलग स्कूल्स में जाकर, मुझे इन्होंने बताया था. आप जब ये इस तरीके की बाल सभाएं जब आप कंडक्ट करते हो, आपका बहुत सारे ऐसे केसेस से आप कम अक्रॉस करते होगे जहाँ पे कि आपको ये पता चलता होगा किसी छोटी वजह से एक बच्चे ने अपराध कर दिया. आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपके क्या स्कूल्स में ऐसी सेल्स बनाई गई हैं आप लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए? क्योंकि एनसीपीसीआर का एक चार्टर है जिसमें ये लिखा गया है कि उनको ये देखना है कि हर स्कूल में ऐसी सेल्स बनाई जाएं. तो आप भी एक स्कूल से हो, आपके स्कूल में ऐसी कोई सेल है? माइक पास लेके जाइए. सबसे पहले तो नमस्ते मेरा आप सबको. मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो बटरफ्लाइज है ये एक तरह के संस्था है जो गली मोहल्ले में बच्चे रहते हैं उनका ये हेल्प करता है और हमें स्कूल भी भेजता है ये. तो बटरफ्लाइज में वो बच्चे रहते हैं ना जो कि गली मोहल्ले से आते हैं, जिनके फैमिली पुअर है, गरीब है, जिनके पास स्कूल जाने के लिए आप पैसे क्या नहीं. ऐसे व्यक्तियों से भी, ऐसे बच्चों से भी रूबरू होते हैं जो कि किसी अपराध की तरफ जा रहे हैं? क्या उनसे आपकी डीलिंग है? हाँ, जैसे कि हमारे स्कूल में ना कितने सारे बच्चे हैं ना जो पेपर में, स्कूल में जो बड़े क्लास के, माइक थोड़ा ऊपर करके बोलो. जो बड़े क्लास में हो तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन और ना स्कूल में तो करते ही है, साथ ही जब स्कूल से बाहर जाते हैं तो बाहर भी उसके बाद चाकुओं को लेके आते हैं वो सब. ओके. हाँ. आपके बगल में एक लड़की बैठी है, आप उसको माइक दीजिए. मेरा नाम जरीन है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर के आसपास आस पड़ोस में कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं जल्दी और लड़ाई करने लग जाते हैं. उससे बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ जाता है और पुलिस भी आ जाती है, पुलिस के पास भी जाना मेरा एक पड़ता है. सवाल था कि एनसीपीसीआर का चार्टर है कि हर स्कूल में एक ऐसी सेल बनाई जाए जिसमें कि बच्चे सेंसिटाइज किए जाते हैं. आप एक स्कूल जाते हो, आपके स्कूल में ऐसी कोई सेल है? जी नहीं, ऐसी नहीं है. Let me now just go across to Mr. Kanungo. Now, Mr. Kanungo, if you're connected to me, can you really explain? Is NCPCR really following its charter? Your basic charter is to implement and find resonance with the act. Now, like this girl is saying that her school doesn't have a cell like that to sensitize the children. Now, how would you really explain? Is NCPCR really doing its job? देखिए, एनसीपीसीआर एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी है जी. एनसीपीसीआर का काम सरकारों को रिकमेंडेशन देना है और उनसे कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए. तो आप इस बात को मानते हो कि अगर आप मिस्टर कानूंगो, अगर आप ये कह रहे हो कि सुनेंगे नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि आप एक रेकमेंडेटरी अथॉरिटी हो, सो डू यू एडमिट हियर ऑन द प्रोग्राम, डू यू नीड मोर पावर्स, देन ओनली एनसीपीसीआर विल बिकम मोर इफेक्टिव? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ. कानून किसके लिए बनता है? कानून समाज के लिए बनता है. समाज में जब तक ये जागरूकता नहीं आए, समाज जब तक कानूनों के माध्यम से ये एक्सेप्टेंस नहीं हो समाज में कानूनों की, तब तक कानून का पूरा पालन नहीं हो सकता.
हम, आप, बच्चे, सब लोग मिलकर कानून का पालन तभी बेहतर तरीके से करवा पाएंगे जब बेहतर सामाजिक माहौल हम तैयार करवा पाएंगे। लेकिन कानून स्कूलों जी, में आप जो सेल की बात कर रही हैं, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, जो आप सेल की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों का मुख्य उद्देश्य है कि प्रॉपर सेंसिटाइजेशन करना। हम लोगों ने चाइल्ड राइट्स की बातें, बच्चों से संबंधित कानून टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंसर्ट करवाए हैं। ये पहली बार इस देश में हुआ है। टीचर्स के थ्रू जितने अच्छे से हम बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, उसका और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। तो हम सबसे पहले तो टीचर्स को ही ओरिएंटेशन देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पहली बार ये बात की है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनके ओरिएंटेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है। ये मैकेनिज्म बनवाने के लिए हम लोग सरकार से सिफारिश कर रहे हैं और इस बात के लिए एडवोकेसी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आयोग लगातार कर रहा है, और आयोग निश्चित रूप से जिस दिशा में काम कर रहा है, बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बने, आयोग इसके लिए कृत संकल्प। लेकिन मिस्टर कानून को जो रिफॉर्मेशन प्रोसेस है, रिफॉर्मेशन प्रोसेस वो कितना सीरियसली लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं जहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं, वहाँ पे देखा गया है कि वो बिल्कुल डिफंक्ट है। वहाँ के मेंबर्स आधे टाइम जी, वहाँ मैं इसके पहले कि अमोदकान जी पे आऊँ, आप इस पर एक छोटा सा जवाब दीजिए कि क्यों ये ऐसा है? चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ बिल्कुल इनफेक्टिव हैं, लोग अटेंडेंस वहाँ की बहुत लो है, ज़्यादातर वहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ बैठे हैं, जिसकी वजह से बोला जाता है कि वो इनफेक्टिव है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एनसीपीसीआर सारे राज्यों से हर महीने समीक्षा कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे राज्यों से बात कर रहा है। सारे राज्यों के कमिश्नर से हम लोग बारी बारी से बात कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि सभी जगह CWCs का गठन हो जाए। आयोग को इसमें काफी सफलता भी मिली है और जे बोर्ड्स का भी हम गठन करवाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने CWCs के लिए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, CWC के जो मेंबर्स हैं उनको नए कानून की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स भी बनवाए हैं और उनका ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है। ओके, मिस्टर अमोदकान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले सर। दो बात जो आपने चूंकि कहा कि ये कैसे प्रोग्राम्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो बच्चे बाहर निकल गए संस्था से, जिन बच्चों से अपराध हो गया और जो बच्चे निकल रहे हैं इंस्टीट्यूशन से, इन बच्चों के लिए एक आफ्टर केयर प्रोग्राम होता है। आफ्टर केयर मतलब बाद में आप उसकी केयर करते हैं। So the aftercare program includes all those things which we are talking here. But then under JJ Act and the Integrated Child Protection Scheme, which is like the main vehicle for implementation of JJ Act, the aftercare program is zero. Okay. There is no provision. The children here, for example, they told 14,000 children from one institution. Let us find out that past 20 years, how much support has been given by anybody, including government, to carry out the program for those children who have come out from the institution. आपको प्रोग्राम होना चाहिए ना। आप मान लीजिए पुलिस है, पुलिस भी इंटरफेयर करती है लोकल लेवल पे, सोशल वर्कर्स भी करते हैं, लेकिन ये बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। हम लोगों को सिस्टमेटिक प्रोग्राम करना चाहिए ताकि वो बच्चे, जैसे आशा ने कहा कि बच्चे गलती कर जाते हैं, अगर गलती करते हैं तो भी नोटिस में आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि क्यों मानोगे इस बात को धर्मेंद्र की, पुलिस के नोटिस में आते हैं, लोगों के नोटिस में आते हैं, एक लड़के ने बदमाशी की, गलती की, वो समय है उसके लाइफ में इंटरवीन। लेकिन धर्मेंद्र, अगर इस सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना है, लाइक फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड रीचेस अ शेल्टर होम, लेकिन शेल्टर होम में जाने के बाद उस बच्चे के साथ क्या होता है? क्या उस पर पुलिस सुध लेती है? क्या NCPCR जैसी बॉडीज हैं वो सुध लेती है, या मिनिस्ट्रीज उस पर सुध लेती हैं? तो वो जो सिस्टम जिसकी अमोदकान बात कर रहे हैं, आफ्टर केयर प्रोग्राम, वो क्यों नहीं स्ट्रेंथन हो पा रहा है? व्हाई आर वी नॉट एबल टू स्ट्रेंथन दिस सिस्टम? लेट मी एलैबोरेट ऑन दैट पॉइंट। हम लोगों ने तो बिल्कुल धरातल पर देखा है थ्रू ऑपरेशन स्माइल व्हेन आई वाज SSP देयर, एंड व्हाटएवर आई एम टेकिंग, इट्स ऑल एम्पिरिकल माय एक्सपीरियंस। देखिए, जो JJ रूल्स में पैरा 63, 64, 65, इट टॉक्स अबाउट द periodical inspections of shelter home, social audit, and it actually lists down a very lengthy and very systematic process. कि प्रत्येक शेल्टर होम में करीब 18-19 टाइप के रजिस्टर्स हैं। इवन देन के अगर कोई बच्चा आपको कोई लेके आया, यू शुड मेंटेन अ रजिस्टर, यू शुड मेंटेन ए विजिटर्स बुक। आपको जान के हैरानी होगी कि एक भी शेल्टर होम में, जो कभी वो बता रहे थे, कहीं कोई ये प्रोसीजर फॉलो ही नहीं होता है। जैसे पुलिस अगर वहां जा रही है तो वो बच्चे से जब इंटरोगेशन करती है कि आपको कौन लेके आया, तब तक वो भूल चुका होता है क्योंकि उसे 4 साल पहले वहां पे लाए। तो जैसा सर ने बताया कि हमारे पास बहुत कुछ है, अभी वी हैव ए प्लेथोरा ऑफ rules, regulations, so many guidelines of state high courts and the Supreme Courts as well, लेकिन उनको implement नहीं कर रहे हैं आप। अब जैसे पुलिस भी, आपने पुलिस के ऊपर कर दिया, चलिए पुलिस ढूंढेगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पुलिस जब तक उसके पास पहुंचेगी, बच्चा 5 साल से वहां पे है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द रेस्टोरेशन प्रोसेस। JJ रूल्स में, JJ एक्ट में आर्टिकल 40, it talks about the restoration, and restoration simply means we should
achieve the reunion of the lost kid with the parents. absolutely. And You made a valid point, Dr. If it is Desai. not done, then the whole there is no Dr. meaning of Desai- having this shelter home or Dr. Desai, isn't it an ironical situation? Because when you talk about the juvenile justice system in the country, the main focus basically is either on the criminality part of it or on the age of the juvenile. But nobody is talking about the restoration process. That's my discomfort. I completely agree. Okay. इन दोनों साथियों ने जो पुलिस ऑफिसर्स ने कहा उसके साथ साथ एक और प्रोविजन पुराने एक्ट में भी था, रूल्स में था, अभी भी है। हर एक बच्चा जो ऐसे होम्स में है उनके लिए इंडिविजुअलाइज मेंटल हेल्थ केयर प्लान बनना चाहिए। Okay. Which is lacking at the moment. Which is generally lacking. दिल्ली हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी अब उस पर बहुत सारे वाइडर पर्सपेक्टिव में ले रही है। मुझे खुद ध्यान है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। एनसीपीसीआर अब कोशिश कर रही है कि इंडिविजुअलाइज मेंटल हेल्थ केयर प्लान बने, जो काउंसलर्स और सोशल वर्कर जो मदद करने वाले साथी हैं वो होम्स में स्टाफ पे हों अवेलेबल। जो प्रयास और बटरफ्लाइज ऐसी संस्थाओं में कुछ व्यक्तियों ने अपने इनिशिएटिव से किया है, वो सारे देश में हर राज्य में एक सिस्टम बनना चाहिए। मैं पूरी गंभीरता से और संजीदगी से एक बात कहना चाहता हूँ, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या सीडब्ल्यूसी अपना काम कर रही है, 100 गुना और बेहतर कर सकती है। लेकिन एक अगर सेंसिटिविटी की कमी है, न सिर्फ दिल्ली में कुछ हद तक लेकिन हर एक राज्य में, एनसीपीसीआर के थ्रू हम बहुत सारे राज्यों में सर्वे कर चुके हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, हर एक राज्य सरकार में जो महिलाओं और बाल विकास के लिए विभाग है, वहां सेंसिटिविटी की कमी है, सिस्टम्स की कमी है। तो आफ्टर केयर प्रोग्राम या रेस्टोरेशन या इंडिविजुअलाइज मेंटल हेल्थ केयर प्लान बने तो रिफॉर्म होगा। Absolutely. So the government needs to focus more on the restoration process. I would like to come to one or two cases more. Where is the mic? Yes. आप लीजिए माइक। आपके this आपसे मैंने बात नहीं किया था। हाँ, आप बताइए। जी बताइए बोले, आप बात करना चाहते हो? हाँ, नहीं उनको माइक दीजिए। हाँ, यस, हाँ, आप बैठ जाओ, बैठकर बात कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर सभी आए हुए सभी व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अब्दुल वासित है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं भी पहले एक गांव में रहता था। मेरा गांव है क्योंकि हमारा समाज दारू पीते हैं, खैनी खाते हैं। जो बड़े लोग करते हैं वो छोटे भी लोग सीखते हैं, छोटे बच्चे सीखते हैं। समाज कैसे बनेगा, वह समाज के साथ बच्चे भी बनना शुरू करते हैं। क्योंकि समाज को हम सुधारने जाते हैं, अगर समाज को बड़े लोग सुधारने जाते हैं, अपने दूसरे पेरेंट्स जाते सुधारने के लिए, जैसे कोई एनजीओ जाता सुधारने के लिए ये समाज को, बड़े आदमी का दिमाग तो नहीं सुधरता। अगर ये बड़े आदमी नहीं सुधर रहे तो इस छोटे बच्चे जो होता है वो इनको सुधारने का कोशिश किया जाता है। आपके साथ क्या वाकया हुआ था? क्योंकि मेरे साथ जो मेरा समाज करता था वह मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी दारू पीता था। क्योंकि मेरे गांव समाज ऐसा है, खैनी मेरा समाज खाता था, मैं भी खैनी खाता था। इसलिए जो समाज जैसे समाज में बना होता है कानून, ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं। मैं 7 साल में चलना सीखा। 8 साल में मैं मेरा परिवार खेती बाड़ी करने में मैंने लगा दिया, क्योंकि इस समाज में ऐसे ही किया गया। क्योंकि शिक्षा नहीं जानते, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, हर गांव पढ़ा लिखा नहीं है। तो अब आपने खैनी खाना भी बंद कर दिया? खैनी खाना भी बंद कर दिया, क्योंकि हर पेरेंट्स के हर छोटे बच्चे के साथ एक गार्जियन होना जरूरी है। क्योंकि गार्जियन नहीं होगा जब तक ये बच्चा सुधर नहीं पाएगा। I think this is the note on which that is the restoration. Absolutely. Dr. Desai, what about the trend where both the husband and the wife are working and the children are growing up in a vacuum? What do you have to say to a situation like this? There are many parents. I mean, I'm a parent like that. My children are growing up in vacuum. That's one part of the problem where the parents need to be much more careful about alternative monitoring and supportive mechanisms. Okay. जो साजिद ने बात कही वो है monitoring supportive mechanism की। लेकिन एक बात मुझे और ध्यान आती है जो इन 3 साथियों ने कही, बाकी सब लोग कह रहे हैं, many of these people who commit crimes of moderate nature or severe nature, they come from those unfortunate broken families. जो मैं इस बच्चे की बात सुन रहा हूँ कि हम बड़े वयस्क लोग इनको तो सलाह देना चाहते हैं,
लेकिन हमारी लेकिन खुद को जनरेशन improve शायद नहीं वो करना नहीं फॉलो चाहते। कर रहा है। तो बच्चे तो हम लोग हमको देखकर ही सीखेंगे। तो कुछ हद तक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर हम लोग हमारा बर्ताव ठीक नहीं he कर sent out a सकते, beautiful message to the society through his exactly. case. इसमें जो ऑपरेशन स्माइल मैंने मैम चलाया था, आई वुड जस्ट Right. इंटरवीन कि उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज था वो डोमेस्टिक वायलेंस का था। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बच्चा वो देख रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो है जो इस बच्चे ने बताया कि एल्डर जो हैं, भाई देखिए अब जैसे आपने ब्लू व्हेल गेम की बात करी, बच्चा अपना खालीपन भर रहा है। खालीपन होता है, सबके जीवन में होता है, वयस्क के जीवन में होता है, वो अपनी तरीके से उसको फिलअप करता है। पहले क्या था, एक जॉइंट लेकिन वो खालीपन कैसे दूर करना है, ये पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों को सोचना है। वो Absolutely. ब्लू क्या दे रहा है, उसे उसके खालीपन को रोमांच के साथ जोड़ रहा है, उसे एक टास्क दे रहा है। तो आप ये समझिए कि बच्चे को जो कि हमें भरना चाहिए था उसका खालीपन, वो एक गेम के जरिए भर रहा है। आशा जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, हमारे शो खत्म होने का टाइम हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपको कोई आशा की किरण नजर आती है सोसाइटी से? आपने ये तमाम बच्चों को सुना जो आए हैं और आज रिफॉर्म होके निकले हैं, और सवाल था मैम से, आशा मैम से। क्विकली थोड़ा सा जल्दी पूछ लीजिए, हमारे पास समय कम है। बोले, माइक दे दीजिए उनको। सर से है, आपके लिए भी है, जैसे आपने कहा कि अपराध और गलती में फ़र्क है, बट बच्चे ने बात कही कि बड़ा जो कर रहा है वही बच्चा करता है। जितने भी हीनियस क्राइम हैं उसमें एडल्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अकेले दम नहीं है जुवेनाइल में, बच्चे में दम ही नहीं है। जब तक उसके सामने कोई बड़ा क्राइम नहीं करेगा ना, वो उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब आशा जी को बोलने दीजिए। आशा जी, आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पे हूँ कि गलती गलती है, अपराध अपराध है। आपको अपराध के श्रेणी को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सबको एक तरह से देखते हैं कि सब बच्चा है माफ कर दिया, तो आपके समाज में इसका बहुत गलत संदेश जाएगा। क्योंकि उसके साथ जो कहता है ना कि ग्रुप है, तो उसके ग्रुप में इसका फर्क पड़ेगा कि इसने किया कुछ नहीं हुआ, तो दूसरा करेगा तो नहीं होगा। मैं बच्चे से सहमत हूँ कि वो कह रहा है कि पीछे से सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये तो वर्तमान के लिए चाहिए कि आज जो हो रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। राइट, सपोर्ट चाहिए। तो ये तो 5 साल 10 साल बाद की बात है, लेकिन आज का आज जो हो रहा है, हर रोज हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर अहमद खान, एक तो सलाह आशा जी को पहली, आशा जी अब सिर्फ निर्भया की मां नहीं है। निर्भया से हर किसी का गहरा ताल्लुक था, मेरा भी रहा इस पूरे केस से। अब ये एक संस्था चला रही हैं और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, उसकी लीडरशिप कर रही हैं। अब इनके विचार में आना चाहिए कि परिवर्तन कैसे हो। सुनिए, एक बात और मेरी सुनिए, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय, सुनिए जी। एक 7 साल की बच्ची थी, है, जिंदा है, और 15 साल का बच्चा वो बाथरूम में गई, पीछे से गया, उसके साथ गलत किया और ब्लेड मार दिया। वो केस जब गया छूटा तो उसके घर लड्डू लेके जाता है कि मैं छूट गया, क्या करोगी? मैं सहमत हूं आशा जी से। अपराध को एक आशा, एक मिनट, ऐसा है कि कंक्लूजन में क्या हम ऐसे सोसाइटी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे देश समाज की तलाश कर रहे हैं जहां हर बच्चा जो गलत काम करे उसको टांग दे हम? नहीं, क्या नहीं, एक मिनट, नहीं, आप सवाल ये है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जो इस बच्चे ने कहा, सबों ने कहा कि हम सबों में किसने गलती नहीं की, यही तो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, और मैं भी कह रहा हूँ छोटे स्तर पे कि कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में, आशा जी खुद है, मैं खुद हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ मैं गलती नहीं की? क्या मैं कह सकता हूँ अपराध मैंने कोई जीवन में नहीं किया? कोई नहीं कह सकता है। देखिए, ये बड़ी अजीब सी कहानी है, इसमें हम लोग इस दिशा में ना जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि भाई बच्चे भारतवर्ष के बच्चे, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा 11 लाख क्राइम होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में एक साल में, 37,000 नहीं होता है इंडिया। On that note, I would want to quote. I'm really running out of time. I'm just really going to pick on from where Mr. Amod Kant has left, and I'm just wanting to quote Tyler, the creator, who said that young blood, it cannot be taken for granted. It has to be allowed to smile. It has to be allowed to live. On that note, I'm really thankful to all my guests, Dr. Desai, Dharmendra Yadav, Asha ji, Amod Kant, and also Mr. Kanungo, who joined us on the program. And thanks to all these young people who've joined us on the program. And they are the real brave hearts, I should say, because they underwent those painful moments, and now they have come out of the process and they are living as informed citizens. I think that's something is really to look forward to, and that is on what the society will really grow forward to. Goodbye and thanks for watching.